Namaste students, I shall Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Program BSc B.Ed 6M, Session Reduction of Carbonyl Compound. Now we discuss reduction of carbonyl compound, our first reduction, Clemenson reduction in 1993. If a carbonyl compound react with zinc amalgam and concentration HCl, the carbonyl group will reduce into methylene group, yes, CH2 group, and alkenyls are obtained. Clemenson reduction is not successful for the reduction of alkenyls. It is generally used for the change of acyl benzene into alkyl benzene. In this general reaction, carbonyl compound react with carbonyl compound in the presence of zinc amalgam and concentration HCl convert to methyl group. तो CO group convert to methyl group are Clemenson reduction. But Clemenson reduction only for ketone is successful, not aldehyde in this reduction. Introduction of Clemenson reduction. The reduction was first reported by Clemenson and Park Device in 1993. In this reduction of carbonyl compounds, maybe aldehyde and ketone to methylene group, the reduction done with zinc amalgam and hydrochloric acid and generally known as Clemenson reduction. The Clemenson reduction is a particularly effective of reduction aryl and alkyl ketone such as formed of Friedel-Crafts alkylation. In this mechanism, the first step, carbonyl compound react with the zinc and convert to three-membered cyclic state. Three-membered cyclic state further react with the zinc and concentration HCl, hydrogen accept in concentration HCl and leaving for Cl minus ion and product formation of methylene. For example of Clemenson reduction, only carbonyl group convert to methylene group in the presence of zinc, amalgam and concentration HCl. Cholesterol 3-on convert to cholesterol. Application of Clemenson reduction. The reduction is widely used to convert a carbonyl group into methylene group. ठीक है, तो अब ये तो अपन को पता है कि किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, मेथिलिन ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम. जिंक अमलगम में क्या होता है, अमलगम जिंक यदि कोई टू मेटल आपस में रिएक्ट होके होती है तो उसको बोलते हैं जिंक अमलगम. एक तो जिंक मेटल है और एक होता है Hg, तो जिंक अमलगम. ठीक है, अमलगम यदि एच जी के साथ कोई मेटल रिएक्ट करती है तो उसको बोलेंगे अमलगम, तो जिंक अमलगम. ठीक है, तो आल्सो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक aromatics and aromatics containing unbranched side hydrocarbon chains, the reduce application and mixer aliphatic aromatic carbonyl compounds. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स हेप्टेनल्स रिएक्ट विथ जिंक अमलगम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड रिएक्ट विथ हेप्टेन. तो अपन हायर चेन के अपन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स को बना सकते हैं. इससे हायर चेन हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो अपन इसमें एल्डिहाइड्स को हायर चेन्स के एल्डिहाइड्स कीटोन्स या एल्डिहाइड लेके अपन हायर चेन के हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोकार्बन्स इन क्लेमेंसन रिडक्शन. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ वोल्फ-किर्चner रिडक्शन. Wolff-Kishner reduction is first introduced. Wolff-Kishner reduction was described independently by N. Kishner in 1911 and L. Wolff in 1912. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे वोल्फ एंड किश्नर, दोनों ने मिलकर रिएक्शन दी, डिस्क्राइब किया. द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इज द रिडक्शन यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू कन्वर्ट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इनटू मेथिलीन ग्रुप. तो देखो इन क्लेमेंसन रिडक्शन में अपन किसको कर रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अपन किस में दे रहे थे, मेथिलीन ग्रुप में. और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन भी क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है किस में, मेथिलीन ग्रुप में. बट द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इज ए ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन यूज हाइड्रोजन बेस एंड थर्मल कंडीशन. देखो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन
base and thermal condition, Wolff-Kishner are convert to aldehyde and ketone to alkenes. But in Clemmensen reduction are not reduced in aldehyde. ठीक है, इजिली नोट रिड्यूस कर नहीं करता है एल्डिहाइड को, बट वोल्फ-किश्नर रिडक्शन आर एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट टू एल्किलीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. देखो नेक्स्ट, बिकॉज द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिक्वायर्स हाईली बेस कंडीशन, इट इज अनसूटेबल फॉर बेस सेंसिटिव सस्पेक्ट्स. ठीक है, तो अपन को हाईली बेस लेना है इन अनस्टेबल बेस कंडीशंस. ठीक है, ओके, तो हाईली बेस कंडीशन यूज लेनी है, तो हाइड्रोजन हाईली बेसिक होता है इन थर्मल कंडीशन में. उसके बाद में अपन पढ़ते हैं जनरल रिएक्शन. देखो, कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हाइड्रोजन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ मैथिलीन. ठीक है, हाइड्रोजन कन्वर्ट इन द हीट एंड कन्वर्ट टू प्रोडक्ट. क्लियर. तो इन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद hydrogen in the presence of heat and base condition. N2 is released and alkenes are obtained. The carbonyl groups into change methylene groups. This reduction are known as Wolff-Kishner reduction. क्लियर. तो इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म. अब देखो, मैकेनिज्म में हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो बेस हाइड्रोजन से एक एच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा विदाउट बॉन्ड, तो बॉन्ड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर. जैसे नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर. ठीक है, H+ एक्सेप्ट करके वाटर रिमूव हो जाएगा. अब वाटर पे जो हाइड्रोजन है उसको अनोदर जो हाइड्रोजन का वो नेगेटिव, जो फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज आ गया था इंटरमीडिएट स्टेज पे, वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है. जैसे ही वो H+ एक्सेप्ट करता है तो OH रिमूव हो जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस अपने पास हाइड्रोजन के पास एक H+ है, वो OH- वापस एक्सेप्ट करता है और H2O रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में वापस H2O H+ एक्सेप्ट करता है. तो ये बार बार कंडीशन होती रहती है और लास्ट में जाके अपने पास N2 रिमूव हो जाता है. N2 ग्रुप रिमूव होता है और N2 नाइट्रोजन ग्रुप रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद में अपन फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है. तो ये थी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की मैकेनिज्म. क्लियर. उसके बाद में इसकी मॉडिफिकेशन. द रिडक्शन इज ए बेसिकली एक्सटेंसिव मॉडिफाइड. वन ऑफ द मॉडिफिकेशन यूज द Hung-Millian modification use distillation of remove excess water and also use 85% hydrogen and solvent use ethynyl glycol. In addition, the Wolff-Kishner reduction has been carried out in DMSO, dimethyl sulfoxide, instead by hydroxylic solvent by addition of hydrogens into anhydrous DMSO, dimethyl sulfoxide contain a potassium tertiary butoxide at 25 degree centigrade Celsius. तो ये हो गई अपने पास वोल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन. एप्लीकेशन ऑफ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन. द रिडक्शन इज वेरी broad application is organic synthesis, especially for the multi-word carbons non-tubes. In green reduce and tricyclic carbonyl compound used to Hung-Millian modification of the Wolff-Kishner reduction, several attempts towards decarbolylation of tricyclic alicyclic acetate containing ketone failed and their acetate functionally had to remove to allow successful Wolff-Kishner reduction. Finally, the alkyl alcohol was installed with oxyfluoridation. The Wolff-Kishner reduction has also been used to kilogram scale for the synthesis of functionalization imidazole substrate. ओके, तो ये हो गया अपने पास वोल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन. उसके बाद में अपने एक रिडक्शन और होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, और रिडक्शन होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस टू कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट टू अल्कोहल.
carbonyl compound convert to alcohol in the presence of lithium aluminum hydride and sodium borohydride। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो यदि आप प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अपन यदि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करें तो किससे कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से। डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड ले लो और अपन उसके डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड that is LiAlH4 and NaBH4 reduced to carbonyl compound convert to primary alcohol and secondary alcohol। क्लियर। ओके, तो ये हो गया अपने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नेक्स्ट यूनिट।